أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. It was a dream and a lifetime mission of its present director, Mr. Jamal Ahmed, who managed to transform this dream into a reality. And enriching and enlightening for all of us. Now may I call upon Professor Iqbal Parvez from the Department of Zoology of this university. He has been associated with this center right from the inception. He was one of the members to finally... With a deep sense of gratitude and patronage, the help and the sagacious counseling of one of a very eminent teacher, and two of them is the fellow of the three major science academies in India, FNA, FASC and FNASC. In addition to, he is a Humboldt fellow, he is the Robert Koch Fellowship of Germany, Fellowship, Ryan Bexley Research Fellowship, and the list goes on and on. He is a visiting fellow of several prestigious institutions in India and abroad, and recently was appointed as a committee member of a very high-powered committee organized by agricultural universities, the Department of Diabetes and Technology, under the leadership of Professor Maran, and one of the biggest corporate hospitals in our country, the Indraprastha. My colleague, Dr. Asim Siddiqui, who is a senior consultant in my department, who has been working day and night to finalize the scientific program, to be in touch with all the faculty and the international speakers, making their arrangements in order they don't feel any problem in attending this conference in Aligarh Muslim University. And thanks to Dr. Jamal for involving the first time the corporate hospital in the process becoming the first doctor in India to complete the DM program in nephrology. He has had a long and highly successful career in his chosen field, commencing as lecturer in endocrinology and retiring in 2003 as head of department. In the process, he has trained more than 70 DMs in endocrinology and set up one of the दूसरा वाला खोल लीजिए। ब्रज की नगरी में
People who drink tea with me always notice how much sugar I put in. Which is quite a lot. I drink tea for the sugar, not for the tea. Basically, this is a lifestyle disease. It requires discipline to remain lean and thin and not get affected by problems, so you can have to go and consult an endocrinologist. And I'm also sure that this can be easily controlled without medication, but if you lack the discipline, you have to go through and come to Professor Jamal to cure you of your ills. So my advice to you is, input is equal to output. Keep control on your diet, exercise regularly, and you will not have any problems. हिंदी में सेमिनार का उद्देश्य क्या था, कहाँ से हुआ है? ये सेमिनार डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजी पे ऑर्गेनाइज हुआ है और इसमें इंडिया के बाहर के 4 स्पीकर्स हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और इंडिया से 37 स्पीकर हैं और ये स्पीकर्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से हैं। कोचिन से हैं, पौंडीचेरी से हैं, हैदराबाद से हैं, भोपाल से हैं, पीजीआई चंडीगढ़ से हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हैं, इसके अलावा बनारस से हैं, लखनऊ से हैं, इलाहाबाद से हैं, कानपुर से हैं, दिल्ली से हैं, बॉम्बे से। उद्देश्य ये था कि जो कॉमन बीमारी होती है शुगर को, उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे ट्रीट करना चाहिए और इसके अलावा जो थायराइड की डिजीज़ है, बोन डिजीज़ है, लेडीज़ में ख़ास तौर से 50 साल के बाद जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें क्या एक्सपर्टीज़ है और दुनिया में किस तरीके की प्लानिंग हो रही है इन बीमारियों को इलाज करने के लिए। तो ये सारे एक्सपर्ट जो भी आ रहे हैं सब अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो डायबिटीज़ का हो, चाहे थायराइड का हो या बोन डिजीज़ का हो या बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होती, ये सारे एक्सपर्ट अपने एरिया के हैं और इनके आने से जो एक मौका मिलता है कॉमन आदमी को, इसमें प्रैक्टिस करने वाले लोग भी हैं, इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन बीमारियों को ट्रीटमेंट में क्या क्या एडवांसेस हुए हैं आजकल। सर कितने दिन और सेमिनार चलेगी? 2.5 दिन, 15, 16 और 17 को 3 बजे ख़त्म हो जाएगा। पर्चे भी प्रेजेंट होंगे, 44 पर्चे हैं हमारे पास जो, और जिनको हमने प्राइज़ भी रखा है, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड एंड थर्ड, 10,000, 5,000 और 7,000 रुपये का, तो पर्चे भी हैं। और ये पहली बार है कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, कोलैबोरेट कर रहा है एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से, अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और ये मैंने इस वजह से ज़रूरी समझाया ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो किसी इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जा सकता है, क्या एडवांसमेंट है। तो एरिया इतना इसका वास्ट है, इतना ज़्यादा एरिया है कि इसमें कंट्री के सारे कॉर्नर से जितने भी स्पेशलिस्ट और ये बड़े सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और उनके ज़रिए जो नॉलेज हम कम्युनिकेट करेंगे वो मेरे ख़्याल से एक बहुत ही यूज़फुल होगा इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। हाँ बोल। क्या है, कहाँ से आप आए और क्या उद्देश्य था सेमिनार? मैं डॉक्टर एस.के. वांगनू जो कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, उसमें एंडोक्राइनोलॉजी के डिपार्टमेंट का मैं अध्यक्ष हूँ। हमने फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर जितने भी न्यू एडवांसेस हुए हैं उनके आधार पर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है इन कोलैबोरेशन विद द राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि डॉक्टर जमाल अहमद उसके अध्यक्ष हैं। हमारा इसका जो मेन
जो एम था कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में है उनको लाकर इस कॉन्फ्रेंस में बताया जाए उन सभी डॉक्टरों को जो कि डायबिटीज़ के क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं या वो स्टूडेंट्स जो कि डायबिटीज़ में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने कई इंटरनेशनल स्पीकर्स को सिंगापुर से, जर्मनी से और यूके से बुलाया हुआ है, जो कि अपने जो उनके रिसर्च है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अपोलो का जो पहला गठबंधन है ये कि सारी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और एडवांसेस को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लाना 3 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको हमने स्वीकार किया। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले 3 दिनों में जितने भी साइंटिफिक डेलिब्रेशन होंगे उससे जितने भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ के क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलेगा।